Hello dear students, I am here with one more topic of class 2 EVS. In fact, it is an interesting topic. So let's have fun with the learning. So today's our topic is environment. Our environment. Environment में mainly हम दो चीज देखते हैं. One is plant and another is animals. So today we will learn about plants. Plants. So children, हम अपने आसपास देखते हैं कि there are different kinds of plants around us. So we see different kinds of plants around us. Each plant differs from other plant in size, shape, color, smell, place of growth, etc. Plants grow on land as well as in water. They grow in cold places and hot places too. So children, you have seen many types of plants, right? And you have also noticed that each plant is different from other plant. Someone is very big, someone is very small. Their shapes are also different, their colors are also different. उनकी जो स्मेल आती है वो भी अलग होती है. और प्लेस ऑफ ग्रोथ मतलब वो कैसी जगह पर उगेंगे, उनको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसी लैंड चाहिए, वो भी अलग अलग होता है. कुछ प्लांट्स को बहुत ही ज्यादा पानी चाहिए, कुछ प्लांट्स जो होते हैं कैक्टस है, इस तरह के प्लांट्स जो है बहुत कम पानी में भी उग जाते हैं. देन प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. सम प्लांट्स, जनरली प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड like neem tree, people tree, rose plant, etc. And some grow in water like lotus, water lily. Okay, so इस तरह से हमारे आसपास वेराइटी ऑफ प्लांट्स होते हैं. ओके, और उनमें से कुछ कोल्ड प्लेसेस में उगते हैं. ओके, एंड कुछ जो है वो हॉट प्लेसेस, उनको गर्मी ज्यादा चाहिए, इस तरह से उगते हैं. सो नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ ट्रीज, टाइप ऑफ plants. The very first type is trees. अब trees किसको कहते हैं? So trees are big, tall and strong plants. सबसे पहली बात, trees बहुत big, बड़े होते हैं, tall ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं. They have a thick brown and woody stem called trunk. उसका जो स्टेम है उसको हम ट्रंक कहते हैं. और वो बहुत ही थिक, मोटा होता है, ब्राउन कलर का होता है और वुडी मतलब लकड़ी से बना होता है. दे हैव मेनी ब्रांचेस दैट बेयर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. देयर रूट्स आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स. ट्रीज यूजुअली लिव फॉर मेनी years. Examples are neem, pine, mango, peepal, banyan, coconut, etc. So these trees have many branches. बहुत सारी डालियां टहनियां होती है और उनमें भी leaves होते हैं, fruits होते हैं, flowers होते हैं. And their roots are also thick and strong. वो भी मजबूत होते हैं क्योंकि इतना बड़ा पेड़ है, उसको होल्ड करने के लिए उसके रूट्स, जो जमीन के अंदर पार्ट होता है ट्री का, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. Here some example are also given. Neem tree, pine tree, mango tree. Okay, and this tree usually live for many years. काफी लंबे समय तक, सालों साल तक वो रहते हैं. So let's see some picture of these trees. The very first you can see, this is a neem tree. You can see many branches over here and a strong trunk. Okay, next pine tree, you can see very strong trunk again and many branches holding leaves, right? Next is mango tree. You like mango? Yes, very good. Mango सबको पसंद होता है. So mango भी है, वो ट्री में उगते हैं. So you can see very strong trunk. बहुत ही मजबूत ये ट्रंक है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं. Okay, and there are many branches bearing leaves and fruits, है ना? Mango tree. Then this is people tree. You can see the size of trunk very
big and very strong. Next, this is banyan tree. Also you can see many branches and a very huge tree, right? So these type of plants means very big, strong and tall are called trees. इनको trees कहते हैं. This is coconut tree, also a tree, and it is also very tall and strong and having fruits and leaves. Come to the next part, next type. This is shrub. Shrub are small to medium sized woody plants and may grow up to height of 5 to 6 meters. Okay, this is small to medium sized woody plant. ये छोटे से मीडियम साइज के होते हैं एंड 5 to 6 मीटर्स तक ग्रो होते हैं. दे आर स्मॉलर देन ट्रीज. ओके, अभी हमने जो इससे पहले देखा दे आर ट्रीज एंड दीज श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं. दे आर हाईली ब्रांच्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. शुरू से ही मतलब स्टेम से ही उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है. दे हैव मेनी थीन ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स. उसके एक से ज्यादा स्टेम्स होते हैं, नीचे से जमीन से ही बहुत सारे स्टेम्स होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुशेस. इसको हम झाड़ियां भी कहते हैं. ओके, श्रब्स यूजुअली लिव फॉर फ्यू ईयर्स. कुछ सालों तक ये रहते हैं. हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन. रोज, हिबिस्कस, जैस्मिन, tulsi, cotton, etc. These are examples of shrubs. So let's see the pictures. You can see this is tulsi, right? The second one, this is cotton plant, this is rose plant, and this is hibiscus. You can see here many branches, and sometimes you can see here these are also many stems. Here you can see not so big, means I mean to say smaller than tree. ये cotton plant आप देख सकते हो, यहाँ पर ये cotton लगा हुआ है. ओके, सो रोज प्लांट भी आप देख सकते हो, बहुत सारी ब्रांचेस है. इसमें भी आप देखो बहुत सारे स्टेम है, ये स्टेम है सारे. Here also you can see many stems and many branches and having flowers and leaves. So these are shrubs. ट्री से थोड़े छोटे होते हैं, right? Now let's move towards the next type. These are herb. Herbs are very small and weak plants. ये shrub से भी छोटे होते हैं. They are very small and weak plant. Weak in the sense उनके stem जो होते हैं, then branches होती है, बहुत ही slender होती है, बहुत ही weak होती है, जल्दी से टूट जाए ऐसी. Okay, so they have thin, green and soft stems. उनके stem भी even soft होते हैं and green होते हैं. They usually live for 3 to 4 months. इनकी जो एज होती है वो भी ज्यादा नहीं होती है. They usually live for 3 to 4 months. It can be used as medicines or to add flavor to food. They are mostly known for their smell, which is pleasant and amazing. Yes, examples are here: mint, coriander, spinach, rosemary. So these herbs are generally used for either medicine or to add some flavor to food. Its smell is very good, it is pleasant and amazing. So these herbs are used to add flavor to food. Let's see some example. Yes, this is mint. Mint means pudina, and you might have eaten pudina chutney and sometime to have pani puri. पानी पूरी का जो पानी होता है वो भी पुदीना से बनता है. तो it is very tasty. Yeah, and the fragrance is also very good. Mint. So it is herb. बहुत ही छोटा plant होता है, एकदम पतला सा. Now you can see the next one is spinach. ये स्पिनेच की भी मतलब साग बनता है, पकोड़े बनते हैं. तो ये भी छोटा सा एकदम आप दिख रहे हो, ग्राउंडेड ही है, मतलब थोड़ा सा ही बाहर निकला है. सो दीज आर हर्ब्स, बहुत ही छोटे. दिस इज रोजमेरी. बहुत देखो पतले पतले स्टेम आपको दिख रहे होंगे. यू कैन सी वेरी वेरी थीन स्टेम्स, राइट? एंड द नेक्स्ट वन is these are coriander, very thin and very slender, weak. Okay, you can break it very easily. So these type of plants
are called herbs. So these are example: mint, spinach, rosemary and coriander. So next type is climbers. अब यहां पर हम इसको थोड़ा मीनिंग समझते हैं। वो व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाइंबर्स। टू क्लाइंब मीन्स चढ़ना। हम किसी के जब जैसे सीढ़ियों से चढ़ते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, तो इट इज टू क्लाइंब। और इसको क्लाइंबर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे क्लाइंब टू अदर थिंग्स, राइट। जैसे कि कोई पेड़ है, कोई खंबा है, कोई वॉल है, उसके ऊपर ये चढ़ जाते हैं। उसका भी रीजन है बिकॉज देयर स्टेम्स आर वेरी वीक। ओके, सो क्लाइंबर्स आर प्लांट with weak stems. They cannot stand straight and need support to grow. Okay, they cannot stand straight and need support to grow. जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऐसा स्टेडी खड़े रह सके, इतना स्ट्रांग नहीं होता उनका स्टेम, बिल्कुल ही नाजुक होता है। सो दे नीड सपोर्ट to climb and to grow. So they must climb on other plants, sticks और wall to grow. इस तरह से उनको कोई ना कोई चीज चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए। So they are called climbers. Examples are here: peas, grapevine, money plant, bean, etc. Let's see the pictures of these climbers. The very first grapevine, you can see the grapevine has climbed with the help of stick. Like देख रहे हो आप, यहाँ पर जो grapevine है उसने एक सपोर्ट लिया है। Here beans also got support of another tree. Okay, this is money plant. Here money plant has climbed and has got support of a iron pole. यहाँ पर एक खंबा है लोहे का, उसका सपोर्ट लेकर ये मनी प्लांट बड़ा है। हियर बीन्स ने एक देखो एक मतलब जाली जैसी वॉल है, उसका सपोर्ट लिया है। सो दीज आर क्लाइंबर्स, क्योंकि वो क्लाइंब करते हैं दूसरी चीजों पर। सो दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स विथ वेरी वीक स्टेम, right, very thin and weak stem, and they need support to grow, to stand straight, right. So grapevine, bean, money plant and pea are the examples of climbers. Now let's move towards the next type. It is creepers. क्रीपर्स भी जैसे क्लाइंबर्स की तरह ही होते हैं, बट ये है कि ये ज्यादा ऊपर चढ़ते नहीं है। बट और उनका एक और चीज है कि इनमें बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं, इसलिए वो ऊपर जल्दी चढ़ नहीं पाते हैं। सो क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट मोस्टली ग्रो अलोंग द ग्राउंड। हमने देखा था कि क्लाइंबर्स को ग्रो करने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, ये भी वीक स्टेम ही होता है, बट दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जमीन पर ही बढ़ते रहते हैं। यदि सपोर्ट ना मिले तो भी जमीन पर बढ़ते रहते हैं। सो इट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंबर्स। दे हैव वीक स्टेम्स एंड थीन ब्रांचेस। क्लाइंबर्स की तरह ही बहुत ही पतला स्टेम होता है और बहुत ही थीन ब्रांचेस होती है। दे यूजुअली बेयर बिग फ्रूट्स, बड़े बड़े फ्रूट्स इसमें आते हैं जनरली। ओके, सो एग्जांपल्स आर हियर: pumpkin, gourd, watermelon, muskmelon, etc. These are examples of creepers. So let's see some pictures. This is watermelon. You can see ग्राउंड पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जमीन है उसके ऊपर ये ग्रो हुआ है। एंड वाटरमेलन एक बिग फ्रूट है, बड़ा फ्रूट है। सो हियर इट इज। नेक्स्ट वन इज मस्क मेलोन। हियर in the same way it grows along the ground and having big muskmelon fruits. Next is pumpkin. See the big pumpkin, and again ground par hai, very thin stem and thin branches, right. Pumpkin. Next one, this is gourd. Again you can see very thin stem and very thin branches. Okay, and very big gourds you can see in this creeper. So these are examples of creeper: watermelon, muskmelon, pumpkin and gourd. So let's see the another type of plant. एक दूसरा प्रकार होता है, and that is water plant और एक्वेटिक प्लांट। इसको वाटर प्लांट या तो एक्वेटिक, क्योंकि एक का मतलब भी वाटर ही होता है, पानी।
So because these plants grow in water, so they are called water plant. पानी में उगते हैं. Water plants are also called aquatic plants. Water plants grow in water. Some of the water plant has floating leaves like lotus, and some are completely submerged under water like hydrilla. ओके, सो इस तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, दे हैव फ्लोटिंग लीव्स, पानी में भी उगते हैं, बट दे हैव फ्लोटिंग लीव्स मींस द लीव्स कैन बी सीन, हम पत्ते देख सकते हैं उसके ऊपर जो है जैसे कि लोटस, लोटस का फूल पत्ता हम देख सकते हैं. बट सम आर कंप्लीटली सबमर्ज अंडर वाटर मींस दे ग्रो अंडर वाटर, पानी के अंदर ही उगते हैं लाइक हाइड्रीला, जिसको मतलब पानी में अंदर देखना पड़ेगा हम यदि उसको देखना है तो. हियर आर सम एग्जांपल्स of water plants: water lily, water chestnut, lotus, duckweed, etc. Let's see the pictures of these water plants. This one is water lily, you can see, दिख रहा है पानी है उसमें पत्ते और फूल इसका दिख रहा है water lily. Yes, the next one is this is duckweed. You can see the leaves are floating on water. Here you can see ये water है और इसके ऊपर ये green green leaves दिख रहे हैं आपको. The next one, this is water chestnut. यहाँ पर भी आपको ये chestnut का plant है and floating on water. And here you can see the very beautiful flower and our national flower also, lotus. It is also an aquatic plant, a water plant. So these are examples of water plants: water lily, duckweed, water chestnut and lotus. तो इस तरह से ये अलग अलग 6 types we have seen different 6 types of plants. Let's repeat this. The very first, tree, बहुत ही बड़े होते हैं, very big. Then shrubs, they are just smaller than trees, tree से थोड़े छोटे होते हैं. And then herbs are very small and weak plants, बहुत ही छोटे छोटे है ना, तो shrub से भी छोटे होते हैं herbs. Then next आता है climbers, दूसरों का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ते हैं फिर ग्रो करते हैं. So they need support to stand and to grow, उनको बढ़ने के लिए और ऊपर उठने के लिए सपोर्ट चाहिए. दे आर क्लाइंबर्स. द नेक्स्ट क्रीपर्स, क्रीपर्स भी क्लाइंबर्स जैसे ही होते हैं बट जनरली दे डोंट क्लाइंब बट दे ग्रो अलोंग विद द ग्राउंड, जमीन पर ही ऐसे फैलते रहते बढ़ते रहते हैं. और जनरली जो क्रीपर्स है उनमें बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं, बिग फ्रूट्स लाइक पंपकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, गोड, लाइक दैट. ओके, एंड द लास्ट वन वी हैव सीन water plants or aquatic plants, like they grow in water, so they are called water plants. So now we have seen the uses of plants are very useful to us. Without plants we cannot imagine our lives, हम उसके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकते हैं. So let's see how they are useful to us. The very first thing, we get food from different part of plants. प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, प्लांट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि लीव्स, पत्ते, ये उनका एक पार्ट है, जैसे हमारे हाथ पैर वगैरह होते हैं, हाथ पैर सिर, लाइक दिस लीव्स होता है. देन स्टेम, देन रूट्स, उसकी जड़ें होती है, फ्रूट्स होते हैं, एंड सीड्स, उसके बीज दाने होते हैं. तो इसमें हम अलग अलग चीजें अलग अलग तरह से खाते हैं. लाइक लीव्स, जैसे कि भाई स्पिनेच है, फेनुग्रिक लीव्स है, इस टाइप के जो प्लांट्स है उनके हम पत्ते खाते हैं, लाइक कोरिएंडर लीव्स. देन वी हैव सीन दोज मिंट लीव्स, राइट. स्टेम, स्टेम मतलब तना, ठीक है. तो शुगर कैन, आपने गन्ने का जूस पिया होगा, गन्ना चूस चूस के खाया होगा. सो दिस शुगर कैन इज अ स्टेम, वो एक तना होता है जिसको हम वी ईट. एंड पोटैटो, पोटैटो भी एक स्टेम ही है बट जमीन के अंदर होता है. So these are the examples of stems that we eat. Then roots, roots मतलब जमीन के अंदर जो जमीन प्लांट का पार्ट होता है, they are called roots. So radish, onion, इस तरह के जो वेजिटेबल्स है तो वो रूट्स होते हैं, लाइक गार्लिक, राइट, तो वो हम खाते हैं. देन फ्रूट्स, फ्रूट्स आपको पता ही है, एप्पल, बनाना, मैंगोज, पाइनएप्पल, दिस ऑल आर फ्रूट्स एंड वी ईट इट, राइट.
एंड देन सीड्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स वी ईट. हमने हमारे चैप्टर फूड वी ईट में भी देखा था that rice, wheat, then maize, millet, these are seeds that we eat. So these are different parts of plants that we use to eat. Okay, the next use, flowers of few plants are used to prepare perfumes. जो खुशबूदार परफ्यूम्स होते हैं वो कुछ फ्लावर्स में से बनते हैं, लाइक रोज, जैस्मिन, डेजी. ये जो खुशबूदार फ्लावर होते हैं दे आर यूज टू मेक परफ्यूम्स. ओके, तो दिस इज अनदर यूज. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट यूज. द प्लांट्स हेल्प टू कीप एयर क्लीन एंड फ्रेश. जो हमारा वातावरण है, हवा है, ठीक है, उसे शुद्ध करता है, क्लीन करता है, फ्रेश करता है. बिकॉज व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक ऑक्सीजन एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट वी थ्रो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. बट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन रिलीज करता है. सो इसलिए हमें फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है. सो इन दिस वे प्लांट्स हेल्प टू कीप एयर क्लीन एंड फ्रेश. द नेक्स्ट वन, सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज. मतलब दवाई के रूप में भी कुछ प्लांट्स यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुलसी लीव्स आर यूज्ड फॉर कफ एंड कोल्ड. सर्दी खांसी जैसा हमें लग रहा हो तो तुलसी लीव्स उसके लिए उपयोगी है. टर्मरिक आर कंसिडर्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी, है ना. ये भी जो टर्मरिक, जो आप हल्दी हम सब्जी वगैरह मसालों में डालते हैं, तो टर्मरिक इज ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी, है ना. इससे हमारी कई तरह की बीमारियों से रक्षा होती है. इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ. देन एलोवेरा. एलोवेरा भी एक जेल टाइप होता है, अंदर से निकलता है, एक प्लांट है. एंड इट इज गुड फॉर आवर स्किन. हमारी स्किन के लिए अच्छा है, चेहरे पर लगाओ तो ग्लो करता है एंड ऑल दैट. आंवला आर गुड फॉर स्टमक. पेट में यदि कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, देन आंवला इज यूजफुल. सो दीज सम प्लांट्स are very useful as a medicinal purpose, right? So this is fourth use. Now let's see the next one. It is used to make paper, furniture and houses etc. जो आपकी बुक, नोटबुक के जो कागज होते हैं वो प्लांट से बनते हैं, राइट. उनके बाक्स वगैरह से हम ये पेपर्स बनाते हैं, उनके लीव्स से. फर्नीचर, घर में टेबल, कुर्सी, बेड वगैरह जो है they are also made from woods, and woods we get from plants. Okay, so houses may be doors and windows are made of woods, and woods we get from plants. So इस तरह से पेपर बनाने में, फर्नीचर बनाने में एंड हाउसेस बनाने में प्लांट्स आर वेरी यूजफुल. द नेक्स्ट वन, फाइबर्स. फाइबर्स मतलब का होता है रेसे, धागे टाइप, राइट. ओके, सो फाइबर्स सच एज कॉटन. जो हमने कॉटन प्लांट देखा था ना, उसकी जो फाइबर्स है, सो कॉटन आर यूज टू मेक क्लोथ्स. कॉटन से कपड़े बनते हैं. जूट, जूट भी एक कॉटन की तरह एक पौधा है जिसमें से फाइबर्स मिलता है. आर यूज टू मेक मैट्स एंड बैग्स. तो जूट के बैग वगैरह आते हैं, बोरे आते हैं, राइट. उसके मैट्स भी बनते हैं नीचे, मतलब बिछाने वाले, एंड बैग्स भी बनते हैं. एंड कोकोनट फाइबर. कोकोनट जो होता है पानी पीने के बाद, या फिर उसका जो अंदर का व्हाइट व्हाइट पोर्शन हम खाने के बाद, जो उसमें से फाइबर्स होते हैं, रेसे रेसे, उससे रोप बनता है. ओके, सो फाइबर्स सच एज कॉटन आर यूज टू मेक क्लोथ्स, jute are used to make mats and bags, and coconut fiber are used to make rope. So next one, cares of plants. अब जब plants हमारे लिए इतने उपयोगी है, they are very useful to us, as I told you previously that our lives cannot be possible without plants. इतने अच्छे हैं तो हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए. Okay, the care of plants. How can we take care of plants so that they grow in a good manner and they grow very fast? Okay,
सो द वेरी फर्स्ट थिंग, प्लांट का केयर करने में, देखभाल करने में सबसे पहली बात, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। सबसे जरूरी बात है उनको पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। सो वाटर द प्लांट रेगुलरली, अदरवाइज इट विल डाई। तो सबसे पहली बात है कि अच्छे से उनको रेगुलरली पानी देना चाहिए, ओके, सो दैट दे कैन ग्रो प्रॉपरली। द नेक्स्ट थिंग, plants should be placed in such a way that it receives enough sunlight। प्लांट जो होता है उनको दूसरी चीज ये चाहिए कि सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, अदरवाइज अगेन दे विल डाई। ओके, सो उनको ऐसी जगह पर रखो, प्लेस इन अ सच अ वे दैट इट रिसीव्स इनफ सनलाइट, उनको अच्छे से सनलाइट मिले, कहीं अंधेरे में या इस तरह से नहीं रख देना चाहिए। ओके, एंड द थर्ड वन, plants leaves should be cleaned regularly so that plant breathes easily। उनके जो लीव्स होते हैं उसको भी हमें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए, so that it can breathe easily। So these 3 points should be kept in mind while caring the plants। Okay, so that's all for our today's lesson। So today we have seen we have about the plants, their types, their uses and their care। कौन को प्लांट कैसे होते हैं, किस किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनके यूजेस क्या है, किस तरह से वो हमें उपयोगी है, एंड देन वी हैव सीन दैट हमें उनका देखभाल कैसी करनी चाहिए, राइट। सो ये सारी बातें आप अच्छे से समझ लीजिए, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो वंस और ट्वाइस, एक या दो बार जरूर देखें आप, अच्छे से समझे, ओके, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक plants। So that's all for today's lesson। Thank you so very much।